Hello students, this is Ajaz Sir's Maths Academy and we have to study surface energy today. We are studying chapter number 2, mechanical properties of fluids, and in that part we are studying surface tension, and in surface tension our today's topic is surface energy. So the topic is surface energy. In the previous lecture, we saw that inside a container there was a liquid. There was a liquid inside the container, and the liquid surface, always remember, here the liquid surface will remain straight. It may be curved at the corners, the meniscus may be curved, but in the middle it remains straight. So there were three molecules. There was molecule A here. It was well inside the liquid. Its sphere of influence was well inside the liquid, and it was being attracted towards left hand side, towards right hand side, to upward, downward. It was attracted from all the sides by cohesive forces. So it remained where it was. Net cohesive force acting on particle A was, molecule A was 0. Then we saw molecule B. A small part of the sphere of influence of molecule B lies outside the liquid, a small part, and here there is air, and we know density of air is less, so there are less number of particles of air in this layer, and here inside the liquid there are large number of particles, so other particles are attracting. Suppose this is water, so other water, let us suppose that this liquid is water, so other liquid molecules, other water molecules are attracting this water molecule inside the liquid. So the net force, I should not draw this arrow, actually this is the correct representation, because the force acts only inside the sphere of influence. The force acts only up to a small distance in the range of the order of 10 raised to power minus 9 meters. So here the net force acting is in the downward direction, cohesive force, and this was molecule B, we studied it. Okay, now the third is, we saw that there was a third molecule, and half of the sphere of influence of this molecule C was in air, and half of the sphere of influence was in liquid. So, and since cohesive force is here greater than the adhesive force, because number of air particles, number of air molecules is less, we know density of air is less than the density of water. So here density of particles is more here in this area in the liquid, so more will be the cohesive force. Cohesive force will be greater here and adhesive force will be smaller. So on the surface, we saw in the previous class that maximum energy is possessed by, maximum potential energy is possessed by molecule C. There are other molecules also inside the liquid. Here there are various molecules, and all these molecules are in random motion due to thermal energy, due to heat energy. Due to heat energy, these molecules are in motion, and there is space here. See, this is molecule C. We can talk about another molecule D, which is also on the surface. In the textbook, in our textbook, it is not given. We can talk about molecule E also, which is also on the surface. Its half sphere of influence is in air, half sphere of influence is in liquid water. Molecule D also has half of its sphere of influence in air and half of its sphere of influence inside the liquid. And there can be a large number of other molecules also. So all the molecules which lie on the surface, all the molecules which are on the surface, these molecules, all these molecules could go, they are being pulled inside. These molecules are being pulled inside due to cohesive forces. The other molecules, these liquid molecules, are exerting cohesive forces on these molecules, but still the molecules on the surface are not going in, they are still on the surface. So we have to believe that these molecules on surface molecules were at one time here, and they went up against the cohesive forces, and still they are being attracted by cohesive forces. There are other molecules which are attracting them. They are saying come down, come down. There is space.
Don't think that there is no space and that's why they have to remain on the surface. No, it is liquid, and you know the density of liquid is intermediate. The density of liquid is less than the density of solid. So there are intermolecular spaces. So these molecules can come inside. There is space. There is space here. These molecules, surface molecules, can come inside, but they are not coming inside. Though they are being pulled by their other molecules, other water molecules, other liquid molecules are exerting cohesive forces. They are being pulled down, but still these molecules are not going in. So these surface molecules possess extra potential energy. Extra potential energy. Why do they possess extra potential energy? Because we have to imagine that they were at the center at one time, they were at the deeper layer, and they went up against the cohesive forces. The cohesive forces said to them, don't go up, don't go up. But still these surface molecules, which were, we have to imagine that they were at the base and they moved up. वो molecules ऊपर चले गए and they were being attracted by cohesive forces. So against the cohesive forces they made this much displacement. From the base to the upward position they made some displacement. So they have done work against the cohesive forces. Cohesive forces were pulling them down and they went up. So they applied force and they made displacement in the upward direction. So all the surface molecules possess extra potential energy. This question, such a question was asked in an entrance exam also. They showed 3 molecules. Molecule X, in that book it was given, Himalaya publication. So molecule X, they showed some other molecule, molecule Y and molecule Z, and they said which molecule possesses maximum potential energy. So we know all the surface molecules possess maximum potential energy. Out of X, Y and Z, or whatever molecule will be on the surface will possess maximum potential energy. So the molecules in the on the surface possess maximum potential energy. So this maximum potential energy possessed by the surface molecules, the extra potential energy possessed by surface molecules of a liquid, molecules of a liquid on the surface, possessed by molecules of a liquid, molecules of a liquid on the surface. We can say the extra potential energy possessed by liquid molecules on the surface. We will write, so it should be meaningfully correct. Extra potential energy possessed by liquid molecules on the surface is called surface energy. We could also define it. The potential energy possessed by the molecules in the surface film is called surface energy, but we have defined it as given in the textbook. So the extra potential energy, these molecules also possess potential energy in the middle layer, but maximum potential energy is possessed by surface molecules. So that extra maximum potential energy possessed by the liquid molecules which are on the surface is called surface energy. Understood? I hope you understood. The molecules which are on the surface, which are at the topmost layer, possess maximum potential energy. Why? Because they were at the base. We have to imagine that they were in the deeper layers and they were attracted by cohesive force. Still they went up, they applied force and they made displacement to the topmost layer, and still there is some space here. They can come down but they are not coming down. That's why they are under tension. They are being pulled towards the center. They are being pulled inside, but still they are there. Still they are not coming down. That's why they possess potential energy. Understood? Remember, physics में potential energy आने का 2 ही कारण है. चाहे वो gravitational potential energy हो, elastic potential energy हो, लिक्विड की सरफेस पोटेंशियल एनर्जी हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो. पोटेंशियल एनर्जी का 2 ही कारण होते हैं. 2 अट्रैक्ट होने वाली चीजों को दूर कर दिया जाए, 2 अट्रैक्ट होने वाली चीजों को दूर कर दिया जाए
तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है, आपने खींच के उनको दूर करके रखा है, तो उनमें भी पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दो तो काइनेटिक बन जाएंगे और वो चिपक जाएंगे आके, है ना, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगी। सो दो अट्रैक्ट करने वाली चीजों को दूर कर दो तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और दो रिपेल करने वाली चीजों को पास में ला लो तो भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। याद रहेगा हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी आने के दो ही कारण है फिजिक्स में। क्या है? दो अट्रैक्ट होने वाली चीजों को दूर कर दो तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, दोनों चीजों में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, या दो रिपेल करने वाली चीजों को पास में लाओ जबरदस्ती, वो रिपेल कर रहे फिर भी आप जबरदस्ती उनको पास में लाओ तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब ये पेन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने पेन को ऊपर उठा लिया, अट्रैक्ट करने वाली चीज को मैंने दूर कर दिया, अर्थ और पेन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, मैंने उनको दूर कर दिया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अर्थ में भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल्स इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको दूर कर दिया, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्रिएट कर दी है ज्यादा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्शन हो रहा है नीचे से, फिर भी ये टॉप लेयर में है, इसलिए इनमें पोटेंशियल एनर्जी है, और वो जो उनमें पोटेंशियल एनर्जी उसी को सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो जो भी स्ट्रेच्ड फिल्म होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी रहेगी, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। चलो ठीक है, अब एक डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। देखते हैं सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन है। सरफेस टेंशन समझते हैं आपको क्या होता है? ये आपको केमिस्ट्री में भी आएगा सरफेस टेंशन, या शायद आपके चला गया होगा, मालूम नहीं। सरफेस टेंशन का मतलब होता है लिक्विड की सरफेस थोड़ी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह रहती है, टाइट रहती है, और उसके ऊपर कीड़े मकोड़े चीटी वीटी चल लेती है, तो वो जो सरफेस टाइट रहती है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने एक एक्टिविटी भी की थी इससे पहली क्लास में, हमने एक ऐसा फ्रेम लिए थे, इस फ्रेम को एक स्टैंड हैंडल था, और इसमें हमने यहाँ एक धागा बांधे थे। धागे की जो लेंथ थी वो डायमीटर से थोड़ी ज्यादा थी, ऐसा धागा बांधे थे थोड़ा ढीला, और इसको सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकाले थे। तो सोप सॉल्यूशन में डुबाने से क्या हुआ था, ये धागा थोड़ा ऐसा हो गया था, और इधर भी फिल्म बन गई थी राइट में, और लेफ्ट में भी फिल्म बन गई थी। हमने लेफ्ट में पिन चुभाई, यहाँ पिन चुभाया हमने लेफ्ट वाले में, जैसे लेफ्ट में पिन चुभाया तो यहाँ की फिल्म ब्रेक होगी, यहाँ की फिल्म ब्रेक होगी। सो व्हाट हैपेंड, राइट हैंड साइड ये जो थ्रेड था ये ऐसा हो गया। अब ये थ्रेड ऐसा क्यों हो गया था? क्योंकि इधर की फिल्म ब्रेक हो गई, इधर की फिल्म ब्रेक हो गई, लेकिन इधर की फिल्म ब्रेक नहीं हुई। तो इधर की फिल्म में इधर के जो सोप मॉलिक्यूल्स है लिक्विड सॉल्यूशन के, वो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना के इधर फोर्स लगा रहे हैं, और इधर का फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। राइट हैंड साइड की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन लेफ्ट की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसीलिए ये धागा जो है थ्रेड ये ऐसा हो गया। इससे पता चलता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल्स को आपस में खींचते हैं, और वो स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह टॉप सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स। और जो लिक्विड जितना गाढ़ा रहेगा उसकी सरफेस उतना टेंशन ज्यादा रहेगा, उस पर चींटी कीड़े मकोड़े चलेंगे, ठीक है। और जो लिक्विड जितना पतला रहेगा, जनरली ऐसा होता है, जो लिक्विड जितना पतला रहता उसका सरफेस टेंशन उतना कम रहता। डेटॉल पे चींटी को चलाओ, डेटॉल पर और पानी पर, तो पानी पे चींटी चल लेंगे, लेकिन डेटॉल या सेवलॉन पे चींटी नहीं चल सकती, क्योंकि डेटॉल और सेवलॉन पानी से भी ज्यादा पतले, उनका सरफेस टेंशन कम है। और जानबूझ के सरफेस टेंशन कम रखते हैं डेटॉल और सेवलॉन बनाने वाले, क्योंकि जिसका सरफेस टेंशन कम होता है वो स्प्रेड ज्यादा होता है, वो कोने कोने में पहुंच जाता है बराबर, है ना। टूथपेस्ट का भी सरफेस टेंशन कम होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। चलो अब हम रिलेशन देखते हैं सरफेस टेंशन में और सरफेस एनर्जी में। अगर सरफेस टेंशन किसी चीज का बढ़ जाता है तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सरफेस टेंशन कम होता है तो सरफेस एनर्जी कम होती है या नहीं होती है, ये रिलेशन हम देखेंगे, ठीक है। सरफेस एनर्जी एंड, मैं लिख देता हूं यहां सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। It is a very important derivation. It has been asked in previous board exams for 3 marks. 3 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अब आप पहले ये बता दो सरफेस एनर्जी किसको बोलते हैं? The extra potential energy possessed by the molecules on the surface of a liquid
The extra potential energy possessed by the molecules of a liquid which are on the surface is called surface potential energy or surface energy. Surface tension क्या है? Force per unit length acting on either side, acting at right angles on both the sides of an imaginary line drawn on the liquid surface. Let us see. अब हम क्या करेंगे? We will take one rectangular frame. हम ये ऐसा रेक्टेंगुलर तार का, एक बाइंडिंग वायर का या किसी प्लास्टिक का या किसी चीज का एक ऐसा फ्रेम बनाएंगे हम ऐसे, और इसको नाम दे देंगे जो हमारी बुक ने नाम दिया है PQRS. इसको हमने नाम दिया PQRS. ये फ्रेम को हमने PQRS नाम दे दिए. और ये जो है Q और R, QR जो है ये स्लाइड हो सकता है. QR जैसे स्लाइडिंग विंडोज होती है ना, घर की खिड़की ऐसी स्लाइड होती है इधर उधर, वैसे ये स्लाइड, वैसे ये QR वाली जो डंडी है, ये सॉलिड फ्रेम कौन सी है? ये यहाँ से यहाँ तक ये सॉलिड फ्रेम है. और QR जो है ये लेफ्ट में भी जा सकती है और राइट में भी सरक सकती है. ये ऐसी है, ये इधर भी सरक सकती है. अगर हम फोर्स लगा के इधर खींचेंगे तो इधर भी जा सकती है, और फोर्स लगे तो चाहे इधर भी आ सकती है. अंडरस्टूड? अब ये देखो, ये फ्रेम लगी है, इसको फ्रेम को हम सोप सॉल्यूशन में डुबाएंगे, साबुन के सॉल्यूशन में डुबाएंगे, सोप सॉल्यूशन में. ठीक है, इमेजिन कर रहे हो आप? इसको हमने काय में डुबा दिया? सोप सॉल्यूशन में. अपने बुक में देखो ऑन पेज नंबर 36, ताकि आपको भी पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं. कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर P'(PSS). अच्छा, अपने बुक ने इनको भी नाम दिया. इसको इधर नाम दिया फाइनल P' और इसको नाम दिया S'. ये फ्रेम है P'(S') या PSS'(P'). ये लंबी फ्रेम है, उसके ऊपर हमने QR एक वायर लगा, और ये वायर स्लाइड हो सकता है लेफ्ट या राइट की तरफ, मूव हो सकता है. ठीक है. दिस फ्रेम इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट. इसको साबुन के पानी में डुबाकर निकाले हमने. कोई भी ले लिए, लक्स, निरमा, हेमा, जया, पुष्पा, कोई भी साबुन लिए, उसको पानी में थोड़ा डिजोल्व किए और उसमें फ्रेम को डुबाकर निकाले. तो यहाँ पर क्या होगा? एक फिल्म बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी. फिल्म यानी कौन सी? अक्षय कुमार की? नो, फिल्म यानी थिन लेयर ऑफ सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन की पतली सी एक पन्नी, झिल्ली, पन्नी जैसी, पॉलीथीन जैसी पतली सी एक लेयर बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी. ठीक है. एंड अ फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन विल बी फॉर्म विद इन द बाउंड्रीज PQRS. और फिल्म कहाँ बनेगी? इधर फिल्म नहीं बनेगी क्योंकि इधर पकड़ने के लिए जगह उसको नहीं है. फिल्म यहाँ बनेगी, इतने एरिया में. द फिल्म विल बी फॉर्म्ड ओनली इन दिस एरिया. मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ आपको, ताकि आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिले. वैसे मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुनाने से अच्छा सीधे सीधे आपको समझा ही दूँ. पढ़ तो आप भी सकते हो, है ना, मेरा टाइम बचेगा. सो दिस इज, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, सोप सॉल्यूशन में डुबा कर निकाले तो इतने एरिया में फिल्म बन गई. अब सरफेस टेंशन की आदत क्या होती है आपको मालूम है? सरफेस, व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ acting at right angles on both the sides of an imaginary line drawn on a free liquid surface. सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो सोप सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर क्या होंगे? सोप मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ऐसे पास पास में डॉट 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 डॉट. अभी अपनी इतने बुक में डॉट वॉट बने हुए नहीं है, हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते. चल, दिख रहे क्या डॉट्स आपको? ये देखो, मैं थोड़े से बनाता हूँ, हालांकि ऐसे डॉट्स पूरी फिल्म में रहेंगे, इमेजिनरी डॉट्स. अब फिल्म के ऊपर मैं परमानेंट मार्कर पेन से डॉट बनाने जाऊंगा तो फिल्म ही फूट जाएगी, पिन चुभ जाएगी उसको. ये ऐसे है डॉट्स. ठीक है, इमेजिनरी. और ये डॉट्स क्या करना चाहते हैं? पास आना चाहते हैं. डॉट्स के पास आने से क्या हो जाएगा? डॉट्स दूर है, और ये डॉट्स क्या है? ये सोप के मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. सोप सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास आना चाहते हैं. लेकिन हम क्या करेंगे? इनको एक दूसरे के पास आने की बात तो दूर, हम क्या करेंगे? ये जो QR है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे, इधर फोर्स लगाएंगे. क्या करेंगे हम? ये किधर खींच रही है? ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये फ्रेम को इधर खींचना चाहते हैं, इधर, ये इधर खींचना चाहते हैं. 1 2 3 4 5 6 बना दिया मैंने ऐसे. ये इधर खींचना चाहते हैं. हम क्या करेंगे?
वो उधर क्या खींचेंगे, हम उससे ज्यादा ताकत लगा देंगे इधर। हम ये मॉलिक्यूल सोप के फिल्म जो है आपको मालूम है सरफेस फिल्म कैसे खींचती, और साइड में खींचती है ना, टेंजेंशियल टू द सरफेस। अभी याद है आपको सोप का मैंने ये फ्रेम का बताया, धागा ऐसा था थ्रेड, फिर बाद में फिल्म को ब्रेक किया तो थ्रेड ऐसा हो गया, और ये थ्रेड इधर क्यों भागा, क्योंकि थ्रेड को किसने खींचा, सोप फिल्म ने। इसका मतलब सोप फिल्म किसी को भी एक साइड में खींचती है। तो इधर सोप फिल्म है क्या, राइट हैंड साइड में, नहीं, लेफ्ट में है क्या, यस। तो फिल्म को खींचाओ, खींचेंगे किधर, फिल्म लेफ्ट की तरफ। अब फिल्म खींच रही लेफ्ट की तरफ, और हम क्या करेंगे, फिल्म जितनी ताकत से इधर खींच रही है उसके ज्यादा ताकत लगा के हम क्या करेंगे, इधर खींचेंगे राइट में, राइट हैंड साइड की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये जो क्यू आर है इसको पकड़ेंगे हम किनारी से, साइड से कहीं भी, और इसको पकड़ के थोड़ा ऐसा इधर खींच लेंगे, और ये क्यू जो है वो स्लाइड होके कहां पहुंच जाएगा, क्यू पहुंच जाएगा ये न्यू पोजीशन में, उसको नाम देंगे हम क्यू डैश। और आर कहां पहुंच जाएगा, ये न्यू पोजीशन में आर डैश। अब क्या हो गया, ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो मॉलिक्यूल्स थे जो इतने पास पास थे एक दूसरे से, खींचने के कारण क्या हुआ, वो दूर चले गए, और अब फ्रेम ये यहाँ पर नहीं है। मैं इसको अब जानबूझ के क्या करता हूँ, इसको डैश डैश कर देता हूँ, डैश 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 डैश, यानी फ्रेम जो थी और ये मॉलिक्यूल्स भी हटा दे, तो अब मुझे बड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स का, और वो बड़ा डिस्टेंस बनाने में बड़ा टाइम खर्च होगा, तो इसलिए नहीं बनाते। ये जो फिल्म के मॉलिक्यूल्स थे जो नजदीक नजदीक थे, फिल्म को खींच लेने के कारण जो क्यू आर था वो कहाँ पहुंच गया, क्यू डैश आर डैश पर खींचने से। तो ये फ्रेम का हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, कितना कर दिया डिस्प्लेसमेंट, आर से आर डैश पहुंच गया, क्यू से क्यू डैश पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट dx हो गया समझो। हमने फोर्स कितना लगा इस पर, F, फोर्स कितना लगा F। अच्छा ये मान सकते हैं हम कि जितना फोर्स है ये खींच रही थी, हमने भी उतना ही फोर्स लगा दिया उसको, लेकिन हमने एक्चुअली ये इधर खींचना चाहती थी लेकिन हमने इधर फोर्स लगा, हमारा फोर्स ज्यादा होना चाहिए ताकि वो राइट में जा सके। तो चलो फोर्स से ये इधर सरका दिया हमने, फोर्स है F, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया dx। ये जो वर्टिकल वाली फ्रेम थी इसकी लेंथ कितनी है, ये वाली L है, लेंथ इसकी कितनी है, L है, तो ये वाली क्यू आर की भी लेंथ कितनी थी, L। अब L लेंथ वाले को हमने इधर खींच लिया, तो एरिया कितने से बढ़ गया, ये वाला एरिया। पहले एरिया कितना था, फिल्म का एरिया कितना था पहले, ओनली दिस मच वाज द एरिया, PQRS वाज द एरिया। पुराना एरिया कितना था, PQRS। अब फिल्म को खींच लिया हमने, तो फिल्म को खींचने से उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया क्या हो गया, PQ डैश R डैश S, सरफेस एरिया बढ़ गया। कितने से इंक्रीज हुआ सरफेस एरिया, ये इतने से, इधर वाला, इसको मैं शेड दूसरे कलर का दे देता हूँ। एरिया कितने से बढ़ा, तो ये इतने से, रेड वाला पार्ट, दिस रेड पार्ट शोज द इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, इतने से एरिया बढ़ गया। अब हम सरफेस टेंशन का डेफिनेशन लगाएंगे। अच्छा सर एरिया इधर से बढ़ा क्या, नो, अगर इसको ये फिल्म को हम ऐसी सोप फिल्म ऐसी देख रहे हैं आपको, ये एरिया दिख रहा सामने का, अगर पीछे जाके देखेंगे तो पीछे भी तो एरिया है ना, यानी इसके दो सरफेसेस है ना। अगर मैं आपको एक रोटी लाके दूं और बोलूं रोटी का सरफेस एरिया कितना, तो आप क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर, नहीं, पतली रोटी है तो आपको बोलना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर, फ्रंट वाला पाई आर स्क्वायर और बैक वाला पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी सामने भी सरफेस फिल्म है और पीछे से देखो तो भी सरफेस फिल्म है, तो दोनों तरफ का एरिया बढ़ गया उसका, है ना। और लेंथ भी उसकी दोनों तरफ है, इधर भी लेंथ है, पीछे साइड भी लेंथ है, उतनी ही लेंथ है उसकी, अंडरस्टूड, क्योंकि दो साइड्स है, फ्रंट एंड बैक। तो अब देखो हम मैथमेटिकल पार्ट करते हैं उसका, यह समझ में आ गया। अच्छा इसको खींचना कैसे मालूम, आइसोथर्मली, यानी ये फिल्म को खींचते समय, ये फिल्म को खींचते समय इसमें, इसको जब हम धीरे, इसको खींचेंगे कैसे, हम इसको खींचेंगे हम क्वेजी स्टैटिकली। मैं थोड़ा, ये वर्ड कहां से आया मालूम, क्वेजी स्टैटिक वर्ड, ये वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स का, पुल्ड क्वेजी स्टैटिकली। मैं वो डेरिवेशन नहीं लिख के दे रहा, क्योंकि अब आजकल क्या है मार्केट में सब नोट्स वोट्स आ गए, आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी सब कुछ दिया हुआ है। पुल्ड क्वेजी स्टैटिकली, क्वेजी स्टैटिकली यानी एक्सट्रीमली स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली। एक्चुअली क्वेजी का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, और स्टैटिक यानी मोशनलेस, झूठा मोशनलेस, यानी देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि मोशन हो ही नहीं रहा लेकिन फिर भी धीरे धीरे हो रहा है। अगर मुझे आपके जेब से 100 की नोट चुराना है, आपका जेब और मेरा हाथ आजू बाजू में है, पता है मेरा हाथ कैसे जब आपके जेब में जाएगा, एकदम धीरे 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 धीरे
धीरे हाथ सरकेगा। अगर कोई देख भी रहा है कैमरा लगा के तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा हाथ आपके जेब की तरफ सरक रहा है करके। इतना धीरे धीरे मैं अपना हाथ आपके जेब की तरफ ले जाऊंगा। तो कोई बोलेगा अंसार सर का जो हाथ है वो तो स्टैटिक है, वो तो मोशनलेस है, लेकिन वो फॉल्स है, वो झूठ बोल रहा है। मेरा हाथ मोशनलेस नहीं है, बहुत धीरे धीरे आपके जेब की तरफ जा रहा है मेरा हाथ। तो क्वेजी स्टैटिकल यानी लगता मोशनलेस है लेकिन वो मोशनलेस नहीं होता। धीरे धीरे हम उसको इतना स्लोली खींचेंगे और रब करके खींच डालेंगे कि फिल्म ही टूट जाएंगी। तो हमको धीरे धीरे खींचना है। और एक रीजन ये है धीरे धीरे खींचने का कि कहीं ऐसा ना कि हम इसको जोर से खींच डाले और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए तो इसके टेम्परेचर में चेंज आ जाए। तो हम इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आने देंगे, इसीलिए इसको लिखते हैं आइसोथर्मली खींचेंगे हम। ये भी वर्ड कहाँ का है आपका आइसोथर्मली, ये केमिस्ट्री में आता है, ये वर्ड हमारा भी आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर शुड रिमेन द सेम। मैं बाद में समझाऊंगा कि सरफेस एरिया बढ़ने से टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा या फिल्म का या कम हो जाएगा, ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो अभी हम क्या चाहते हैं, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और बहुत धीरे धीरे फिल्म को हम राइट हैंड साइड की तरफ खींचेंगे। तो इतना एरिया बढ़ गया रेड वाला एरिया, है ना। अब ये इंक्रीज इन एरिया को हम कैसे बताएंगे, डीए से बताएंगे। डीए का मतलब क्या है, चेंज इन एरिया। डीएक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आर से आर डैश तक डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसका, क्यू आर का हो गया। ये जो स्लाइड होने वाली जो डंडी थी उधर सरक गई, ठीक है। चलो अब सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। व्हाट इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब उसके बाद क्या करेंगे फिर हम, तो फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा लेंथ में यहां मैं 2L लिख दूंगा। और 2L क्यों लिखूंगा, बिकॉज द फिल्म हैज टू surfaces both in contact with QR। ये लाइन लिखने पर हाफ मार्क दिया गया बोर्ड एग्जाम में। मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन से ईयर का बोर्ड एग्जाम था, लेकिन उसकी जो मार्किंग स्कीम थी वो बोर्ड एग्जाम की जो ब्लूप्रिंट टाइप पेपर चेक करने, उसमें हाफ मार्क ये पॉइंट लिखने पर है कि यहाँ 2 क्यों आया। तो द फैक्टर 2 इज इंट्रोड्यूस्ड हियर। हालांकि सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन आपको मालूम है अगर आप ध्यान से मेरे हर एक लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे तो आपको मालूम है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये एक सॉल्यूशन है बीकर में रखा हुआ, ये सरफेस है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ पे एक नीडल है, सुई, बहुत पतली सुई है, कपड़े सीने की सुई है। इसका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था आपको, सरफेस टेंशन क्या लिखा था, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F/2L लिखे थे, क्योंकि फोर्स जो है वो दो सरफेसेस पर एक्ट हो रहा है। तो इसकी भी दो सरफेसेस है, फ्रंट और बैक सरफेस है, इधर से भी और पीछे से भी, और दोनों क्यूआर के वो कांटेक्ट में है, क्यूआर को पकड़ के है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू 2L, ये होगा फोर्स। अब वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से हमने यहां इसको थोड़ा सा खींचा, कितना सा खींचे, dx, बहुत ज्यादा नहीं खींचे, बहुत ज्यादा खींचेंगे तो फिल्म ही ब्रेक हो जाएगी। हमने बहुत थोड़ा सा खींचा, बताने में डायग्राम में बड़े आपको बड़ा दिख रहा है, बट आपको इमेजिन करना है कि हमने ओनली छोटा सा खींचे इसको, r से r डैश का डिस्टेंस बहुत छोटा है dx, और आपको मालूम है फिजिक्स में ये डेरिवेटिव जब भी लेते हैं हम, इसका मतलब होता है स्मॉल डिफरेंस, है ना। तो dx यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन भी छोटा सा लिखेंगे, वर्क स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब फोर्स की जगह क्या लिख रहे हैं हम, T इंटू 2L इंटू dx इज इक्वल टू T इंटू, अब ये क्या है, 2L इंटू dx का मतलब क्या है, L इंटू dx यानी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया है ना। और 2 ये क्या बता रहा, एरिया इधर में भी बढ़ा फ्रंट साइड, और बोर्ड के पीछे जाके देखोगे आप तो उधर से भी एरिया बढ़ गया। फिल्म की दो सरफेसेस है ना, इधर से भी फिल्म है, इधर से भी फिल्म है, तो इधर का एरिया बढ़ा और पीछे से पलट के देखा तो इधर का भी तो एरिया बढ़ा ना, तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज इन एरिया हो गया। यानी इसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे, dA, दोनों मिलाकर, दोनों तरफ का एरिया इंक्रीज मिलाकर dA है। तो ये है वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू dA, अंडरस्टूड। तो हमारी बुक ने डेरिवेशन में भी क्या लिखा है फिर इसको, बस यही लिखा है, dW इज इक्वल टू T इंटू dA। व्हाट इज dA, dA is increase in area,
dA इज इक्वल टू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। अब यहां पर क्या हो रहा है मालूम है आपको, यहां पर एरिया बढ़ाया हमने, हो सकता है हम उल्टा इमेजिन करते कि पहले फिल्म बनी थी ये क्यू आर यहां से यहां तक और उसके बाद क्या हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया। एक बात और समझ लो, मान लो कि पहले फिल्म बनी थी पी क्यू आर एस, हमने इधर फोर्स लगाए ही नहीं, हमने फोर्स इधर नहीं लगाया, अपने आप सरफेस टेंशन ने इसको खींचा और खींच के इतना फोर्स लगाया एफ और ये फिल्म यहां आ गई, ये आर डैश इधर आ गया और क्यू डैश इधर आ गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ा या कम हुआ, इतने से सरफेस एरिया यहां पर क्या हुआ, कम हो गया, समझ रहे। हालांकि वर्क यहां पे भी हुआ क्योंकि सरफेस टेंशन ने फोर्स लगाया और एरिया, इतना एरिया कम हो गया। तो व्हाट इज डीए, और ये फिल्म भी जो है ये यहां तक जो फिल्म थी क्यू आर, वो क्यू डैश आर डैश छोटी फिल्म हो जाएगी, जो बड़ी फिल्म थी वो छोटी फिल्म हो जाएंगे, तो सरफेस एरिया छोटा भी हो सकता है। तो व्हाट इज डीए, चेंज इन एरिया ऑफ द फिल्म, एंड व्हाट इज डीएक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू आर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंथ क्यू आर, है ना ऐसा। तो ये देखो dw इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। मैं स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए क्या फॉर्मूला बताता हूं मालूम है, वर्क इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, टी डी ए। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता ऐसा याद रखा करो, वर्क इज इक्वल टू टाडा, हालांकि वो टी के बाद ए नहीं है फिर भी याद रखना टाडा, क्योंकि जब अपन पूरे 16 चैप्टर्स पढ़ लेंगे ना तो फॉर्मूले का भंडार जमा हो जाएगा और उस समय कौन सा फॉर्मूला कौन से चैप्टर का क्या है वो एक जल्दी रिकॉल होने के लिए ये लिखना याद रहता है। फिर टी का फॉर्मूला था हमारा चैप्टर नंबर 1 में। वैसे वर्क इज इक्वल टू टाडा, टाडा क्या होता है मालूम है आपको, जो मुजरिम बहुत बड़े बड़े मुजरिम होते हैं उनको तिहाड़ जेल और बड़ी बड़ी जेल में भेज देते और उन पर जो केस लगाते, कलम लगाते, उसको बोलते इस पे मौका का लग गया कलम, बोलते इस पे टाडा लग गया। टाडा मेरे ख्याल से शायद एक जेल का नाम है या तो फिर कोई किसी केस का नाम है टाडा। तो ये याद रखना, वर्क इज इक्वल टू टाडा। अब ध्यान दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सोप बबल है, साबुन का बुलबुला, सोप बबल, और सोप बबल में आपने पाइप घुसा दिए, या तो सॉरी सोप बबल में नहीं घुसा पाइप, पाइप था उसमें आपने लिक्विड लिए यहां तक थोड़ा सा और मुंह से फूंक मारे तो यहां पे सोप बबल बन गया, ये सोप बबल बन गया आपके फूंक मारने से। आपने यहां से एयर ब्लो की, उसमें आपने हवा भर दी, वो हवा से सोप बबल बन गया बड़ा, ठीक है। नाउ इमेजिन, अब ये सोप बबल की रेडियस पहले कितनी थी, R1 0 सेंटीमीटर है ना, और अब इसकी रेडियस कितनी हो गई, तो सोप बबल जो बड़ा बन गया इसकी रेडियस होगी समझो 5 सेंटीमीटर्स। तो आपने वर्क किया या नहीं किया, सोप बबल बनाने में वर्क होता है या नहीं होता, होता है। कैसे, तो आपने फूंक मारे, या हम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि पहले सोप बबल 1 सेंटीमीटर का था, छोटा सोप बबल था, ऐसा सोप बबल था छोटा सा, ये इसमें 1 सेंटीमीटर रेडियस का ऐसा, फिर आपने इसमें और फूंक मारे तो फूंक मार मार के इसकी रेडियस बढ़ गई और अब इसकी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। छोटा सोप बबल था, आपने फूंक मार के बड़ा कर दिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया। पहले कितना था सरफेस एरिया, पहले एरिया A1 था 4 पाई R1 स्क्वायर, स्फेरिकल सरफेस है, और ये लिक्विड ड्रॉप है या सोप बबल है, SOAP सोप बबल। अगर ये सोप बबल है तो मैं इसको लिखूंगा इंटू 2, सरफेस एरिया को लिखूंगा मैं 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू 2। पहले एरिया इसका इतना था, हमने सर 2 का के लिए, अरे भाई सोप बबल है तो अगर मैं आपको एक ठेका दे दूं, कॉन्ट्रैक्ट दे दूं कि सोप बबल को पेंट मारना है, तो पेंट आप बाहर से मारोगे, अंदर भी तो सरफेस है, अंदर भी तो उसकी सरफेस है 4 पाई R स्क्वायर। तो थिन सोप बबल के लिए ये 2 इसलिए आ रहा है कि सोप बबल हैज 2 सरफेसेस, वन इज आउटर 4 पाई R1 स्क्वायर एंड वन इज इनर सरफेस एंड बोथ आर इन कांटेक्ट विद एयर। अंदर भी हवा, बाहर भी हवा, हवा ही हवा, और अंदर की सरफेस पे भी हवा लग रही है, एयर टच हो रही है, बाहर की सरफेस पे भी एयर टच हो रही है, तो 2 सरफेसेस पर एयर टच हो रही है। तो इनिशियल सरफेस एरिया कितना था 4 पाई R1 स्क्वायर और फाइनल सरफेस एरिया कितना हो गया A2।
तो फाइनल सरफेस एरिया होगा 4πr² इंटू 2। सोप बबल बड़ा होगा तब भी तो दो ही सरफेसेस रहेंगी ना उसकी। तो अब मुझे बोलना डी ए चेंज इन एरिया, तो डी ए का मतलब क्या होता, बड़ा एरिया A2 माइनस छोटा एरिया A1। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सिर्फ बोलेंगे फाइंड द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जब बस इतना बोलेंगे कि सोप बबल ऑफ 5 सेंटीमीटर, उसका इनिशियल रेडियस की कुछ बात देंगे नहीं, तो समझ जाना इनिशियल रेडियस 0 है और फाइनल रेडियस जो भी वैल्यू देंगे वो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी। तो ये डीए का मतलब क्या है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, फाइनल एरिया कितना है 8πr², 8πr² माइनस इनिशियल एरिया 8πr1², और इसमें से हम 8π कॉमन निकाल लेंगे, r2² माइनस r1² करेंगे। ये क्या हुआ, ये हो गया उसका चेंज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। कभी डिक्रीज हो वाले क्वेश्चन भी आ सकता है, इंक्रीज वाला भी आ सकता, डिक्रीज वाले हम बाद में डील करेंगे। ये हो गया। और फिर अब मुझे वर्क डन पता करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क इज इक्वल टू टाडा का फॉर्मूला लगाऊंगा, टा सरफेस टेंशन। अब ये सोप सॉल्यूशन है, और इससे पहली क्लास में मैंने बताया आपको कि सोप सॉल्यूशन अगर सीजीएस यूनिट में लिखे तो 25 होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का ऐसा यूनिट डाइन, लेंथ यानी सेंटीमीटर, और यहाँ मैंने वैल्यूज काय में लिखा, सेंटीमीटर में लिखा है, इसलिए मैं सीजीएस यूनिट फॉलो कर रहा। तो सरफेस टेंशन भी काय में गिनूंगा, सेंटीमीटर में। अब ये हमको याद रखने की जरूरत वैसे नहीं है, एग्जाम में ये वैल्यू दी हुई रहेंगी, बोलेंगे सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज 25 या 30, जो भी वो देना चाहते। वैसे ज्यादातर बुक्स में 25 और 30 ये दो वैल्यूज आती रहती है, तो वो कभी कभी उसके बीच की या कोई कम ज्यादा वैल्यू देते हैं। अलग अलग साबुन का सरफेस टेंशन अलग अलग हो सकता है, और कितना गाढ़ा है पतला है सॉल्यूशन उस पर भी डिपेंड करता। तो 25 डाइन पर सेंटीमीटर अगर ये सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन की वैल्यू लिखूंगा, और ये इंक्रीज इन एरिया फाइंड कर लूंगा मैं। उससे मुझे पता चल जाएगा कि सोप बबल जो छोटा था उसको फूंक मार के बड़ा करने में मैंने कितनी मजदूरी करा, कितना बड़ा काम करा मैंने, कितना वर्क किया। या उल्टा भी हो सकता, वर्क डन की वैल्यू दे देंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज कितने से हुआ या डिक्रीज कितने से हुआ, और सरफेस टेंशन फाइंड करने के लिए दे देंगे। या तो फिर कुछ और भी दे सकते हैं, इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ। वैसे ये जनरली पूछते नहीं, आज तक जितने बार पूछे ज्यादातर पूछते फाइंड द वर्क डन, और कभी कभार रेयरली पूछते हैं सरफेस टेंशन फाइंड करो करके। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यही आता है, फाइंड द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस कुछ भी वैल्यू। तो अगर इनिशियल रेडियस की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ इतना दिया है, फाइंड द वर्क डन इन ब्लोइंग, BLOWING, फाइंड द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब R1 कितना था इनिशियल रेडियस, 0 सेंटीमीटर या 0 मीटर, जो भी आपको एसआई में सॉल्व करो या सीजीएस में, तो 0 था। और फाइनल कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। उसको आप मीटर में कन्वर्ट करो या मत करो, वो बाद में न्यूमेरिकल्स के समय हम डिस्कस करेंगे। तो जब इनिशियल रेडियस नहीं दिए तो 0 समझना, और कभी कभी लिखा रहता फाइंड द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर टू अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है सोप बबल का ही क्वेश्चन स्फेरिकल वाला ही आए, कभी कभी लिक्विड ड्रॉप का भी आ सकता है कि पानी का बूंद अगर है, एक पानी का बूंद है, हमने उसको फूंक मारे तो वो पानी का बूंद बड़ा हो गया। अब पानी के बूंद के अंदर हवा रहती क्या, नहीं, सिर्फ बाहर रहती। तो सोप लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया अगर फाइंड करना हो तो 4πr², लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया 4πr², और सोप बबल का है तो 2 टाइम्स 4πr²। याद रखना बबल और ड्रॉप में फर्क। लिक्विड ड्रॉप का मतलब होता है अंदर से सॉलिड मतलब अंदर से पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना रहता, 4πr², और लिक्विड बबल का BUBBLE बबल का अगर आया तो उसका सरफेस एरिया 2 टाइम्स 4πr², क्योंकि लिक्विड बबल के अंदर भी हवा रहती, बाहर भी हवा रहती, लिक्विड ड्रॉप के अंदर हवा नहीं रहती। और कभी कभी ये भी आ सकता, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसका एरिया कितना था, तो लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी दी रहेगी, B L × B, बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इतना है, लेकिन बाद में इसको dx से खींच लिए, तो फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन, जिससे फ्रेम बनी है, सोप सॉल्यूशन फ्रेम यानी फिल्म बनी है, वो इनटू इंक्रीज इन एरिया और डिक्रीज इन एरिया, जो भी रहेगा। एरिया चाहे बढ़ सकता, अब ये वाले में अभी क्या हो गया, एरिया कम हो गया, पहले जो मैंने समझा था उसमें एरिया बढ़ गया था।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कंफ्यूजन अगर थोड़ा भी लगे तो बिंदास में बेझिझक फटाफट मुझे क्वेश्चन पूछना है व्हाट्सएप पर, और मैं तुरंत से तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा और अच्छे से, और अगर कोई डाउट होगा तो और क्लैरिफाई करके दूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी आपको हर एक चीज अच्छे से समझाना, और आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे समझाए हुए पर हार्ड वर्क करना और अच्छे मार्क्स मिलाने की पूरी तैयारी करना। एम हाई, लो एम इज अ सिन। ठीक है, चलो हैव अ नाइस टाइम।